हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। 29 अगस्त। सिद्धांत ये होना चाहिए कि हम अपनी प्रतिभा का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करें, वही असली संन्यास है। संन्यास की औपचारिक स्वीकृति, जैसे कि सभी वृद्ध लोगों के लिए आवश्यक है, का अर्थ है कि व्यक्ति को भौतिकतावादी जीवन से संन्यास लेना चाहिए और अपना समय और ऊर्जा भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। हयग्रीव को पत्र 29 अगस्त। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। So, Krishna is very selfish. He says, here it is said, Sakatha Krishna. Anyone who is engaged in hearing Krishna's katha, katha means words, messages. So, in the Bhagavad Gita also, Krishna says, Mam ekam, only unto me. Ekam. This is required. Although everything is Krishna, but according to the pantheist theory, we cannot worship everything. Everything is Krishna, that's a fact. But that does not mean we have to worship everything. We have to worship Krishna. The Mayavadi philosopher, they say, if everything is Krishna, so whatever I worship, I am worshipping Krishna. No, that is wrong. Just like the same example can be given that in the body, I am this body, everything I or mine. But when foodstuff is to be taken, it is not to be pushed through the rectum, but through the mouth. That is the only one. You cannot say the body has got 9 holes, 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth, 1 rectum, 1 genital, 9 holes. So why not push the food in any hole? That is Mayavadi theory. After all, they say the foodstuff has to be given to the body, inside the body. So, I can push the foodstuff through any hole. There are so many holes. Sometimes in medical science, when it is impossible to push food through the mouth, they push through the rectum. That is artificial. But emergency they do sometimes. But that is not the way. The real way is that food is required to be given to the body, but it must be given through the mouth, not through any other hole. Similarly, if we actually want our contact with the absolute truth, then we have to go through Krishna. Krishna has many forms. Advaita Achyuta Anadi Ananta Rupam. Ananta Rupam. So, because nothing is but Krishna, everything is Krishna's energy. So, the process is to contact the absolute truth means Krishna. Therefore Krishna here says, not Krishna, Vyasdev says,
through Sutta Goswami, the Krishna is very kind, very friendly to the Suhit Satam. Satam. Satam means devotees. He is very intimately in friendship with devotees. Krishna's another qualification is Bhakta Vatsal. Here is also said, Suhit Satam. Satam means devotees. He is friend of everyone. Srida Sarvabhutana. Without Krishna being friend of everyone, nobody can live for a moment. Your Krishna is protecting everyone, supplying food to everyone. Nitya Nityanam, Chetanas Chetananam, Eka Bahunam, Vidudhati Kaman. Eka, that one person, Supreme Personality. We are all personalities, all living entities, we are all personalities. We are not a homogeneous lump. Everyone has got individuality. So every one of is a individual personality. Everyone. So, Krishna is the Supreme Personality. That is the difference. He is also individual. The only difference is that he is supreme. We are all subordinate. We are dependent on Krishna. If Krishna does not manage things nicely, then we are doomed. Just like you are walking on the sea beach, such a vast ocean, we are confident that the sea waves cannot come beyond this line. We are confident. That's why we are walking. But actually, the vast ocean, within a second, it can succumb so many cities. But by whose order it is keeping the honor? No, not beyond this. You may be very great, that's all right. But not beyond this line demarcated. This is Krishna's order. The sun is so big, 1,400,000 times bigger than this earth, and so powerful, blazing fire. You know, those who are scientific men, they know, the sun has got his orbit. A little deviation from the orbit can turn the whole world into snow and turn the whole world into blazing fire. But your scientist friend, is it not a fact? Yes. It is running under certain orbit exactly because a little deviation from the orbit will create havoc, catastrophe immediately. Either fire or snow. So under whose order this sun is so strictly following the demarcation, such a big body. In our practical experience, if he has got heavy body, he moves like this. It's not steady. But such a huge body is exactly, according to astronomical calculation, they calculate some 1/10,000th part of a second in this way. So we have to study this. Under whose order? They say there is no God. But how these things, the natural functions, are being performed strictly, without any deviation. That is implied in the Brahma Samhita. Jachakshuri sasavita sakalagrahanam raja samasta suramurti rasi satija jasyagaya brahmati sambrita kala chakru govindamadi purusham tamang bhajami.
The sun is the eye for all planets. We are very much proud of our eyes. Can you show me? What nonsense, what can you see? You cannot see anything without sun. You are so much proud of your eyes. You cannot see. Why do you say, can you show me? First of all, be qualified to see. Then you can see. But the rascals say, can you show me God? They cannot see even ordinary things if there is no sunshine and they want to see God. Just see how much lunatic, crazy. You can see God, but you have to qualify the eyes. Then you can see. So, the sun is our eyes, actually. Not only this planet, all the planets within this universe. Therefore it is said in the Brahman, Jachakshuri sasavita sakala grahanam. The Gayatri mantra, Om Bhurvasa, that is worshipping the sun. Sat God, Savita, Savitri. So, Jachakshuri sasavita sakala grahana. Raja, samasta grahana. Just like there is king, president, similarly the sun planet is the king of all planets. Those who are standing, they can stand near the wall. Don't block. Jachakshuri sasavita sagala grahanang raja samasta shulamurti. All the demigods, they are worshipping this Gayatri mantra. Jachakshuri sasavita sagala grahanang raja samasta shulamurti asesha teja. Unlimited temperature. Unlimited temperature. For millions and millions of years, it is diffusing temperature. And if it is little more, we become 90 millions away, 90 millions of miles away, still little rising of temperature, we become suffocated. Asesati, unlimited temperature. And moving. Jachakshuri sasavita sakala grahanang raja samasta suramurti asesati ya. Jassa agaya, by whose order Brahmati is moving. Sambrita Kala Chakra, the orbit. Sun has got orbit. 16,000 miles per second moving. But moving how? Not a little deviation. Exactly in the line. Because little deviation will cause havoc. Just the same way, a little punching over the whole sea, finished, Los Angeles. You see? And this is the order of Krishna. हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 19। तस्मादासक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को कि कर्म करना है, लेकिन कर्म फल में आसक्त नहीं होना है। हमें कई बार लगता है कि अगर कर्म के फल में आसक्ति नहीं तो फिर मैं कर्म क्यों करूं? ये प्रश्न है।
अगर मुझे एग्जाम देना है और मुझे मार्क्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो फिर मैं क्यों एग्जाम दूं? अगर मैं नौकरी कर रहा हूं, मुझे सैलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं फिर क्यों नौकरी करूं? ऐसा प्रश्न उठता है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग गलत है। यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है आप कर्म करो लेकिन फल में आसक्त मत हो जाओ। अनासक्त, इसका मतलब क्या है? आज देखिए, आसक्त होने से क्या प्रॉब्लम, पहले उसको बताते हैं। एक स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है, पूरा साल तैयारी करता है, और किस इच्छा से कि उसका एक अच्छे कॉलेज में, टॉप 5 कॉलेजेस में उसका एडमिशन हो जाए। ये वो सोचता है, बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन उसको कर्म के फल से अनासक्त होना पड़ेगा कि मैं पूरा साल तैयारी किया, मैंने अपना काम किया, अब नहीं हुआ, ठीक है, हमारे हाथ में हर चीज तो नहीं है ना। अब आसक्त हो जाते हैं लोग, चाहे नौकरी से, चाहे पढ़ाई से, और रिजल्ट नहीं जब मिलता है तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, तो फिर नेगेटिविटी पूरी भर जाती है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो अर्जुन, और ये हम सबको कह रहे हैं एक्चुअली अर्जुन के माध्यम से, कर्म करो, जो हुआ हुआ। इसमें फिर क्या होगा आगे बताएंगे। इन श्लोकों में ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां से श्लोक चालू हो रहे हैं, जिसमें बताएंगे कि सिर्फ अपनी ड्यूटी करने से आप परफेक्शन को प्राप्त कर लोगे। वही तो बोल रहे हैं, परम प्राप्ति हो जाएगी, पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी सिर्फ ड्यूटी करने से, भले आपको रिजल्ट मिले ना मिले। जैसे कोई व्यक्ति जॉब करता है, 30 दिन उसको ड्यूटी करनी है, सैलरी अपने आप आएगी। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अपनी ड्यूटी भगवान के अनुसार जो आपकी ड्यूटी है उसको करो। हमको खुद भी और दूसरों को सिखाना चाहिए कि रिजल्ट ओरिएंटेड न बने। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब पूरा हमारा ध्यान जो है वो फल पे केंद्रित है, हमारे कर्म पे केंद्रित होना चाहिए, हमें ड्यूटी ओरिएंटेड बनना चाहिए। उसमें क्या हो रहा है, जितना भी क्राइम हो रहा है दुनिया में, तो यही तो है। चाहे रावण था, रावण ने लोगों को तकलीफ देना, किसी की राजकुमारी, किसी की रानी को अगवा कर लेना, किडनैप करना, यही सब उसका काम था, क्योंकि वो फल पे फोकस था कि हमको भोगना है। लेकिन कैसे, क्या मार्ग ले रहा है, उसके कारण तो उसका सर्वनाश हो गया। आज जो क्राइम हो रहा है, कोई कंट्रोल करना चाहता है, कोई भोगना चाहता है, किसी को पैसे चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को पावर चाहिए। क्यों? तो आज पावर के लिए, पैसे के लिए, पोजीशन के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि वे पाप कर रहे हैं। अब भगवान बोल रहे हैं कि आप अपने कर्मों को देखो, फल को मत देखो, वो मैं देख लूंगा। आज कई बार हम सुनते हैं लोग पकड़े भी जाते हैं, स्टूडेंट चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है। क्यों? उसका फोकस फल पे है। अब चीटिंग करता पकड़ा जाता है तो उसका पूरा करियर खराब हो जाता है। कुछ लोग पैसा देके डिग्री खरीद लेते हैं, पैसा देके किसी बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में, स्कूल्स में वो सीट्स खरीद लेते। ये क्राइम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इच्छा है फल को भोगने की। अब उसमें पाप हो रहा है, वो अलग। उद्देश्य क्या है जीवन का, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। अगर उद्देश्य क्लियर हो कि मुझे भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, मुझे परम सिद्धि प्राप्त करनी है, अपने भगवत धाम को जाना है, जो भगवान का धाम है, हमारा घर वहीं है, हमें वहीं जाना है, ये उद्देश्य है। लेकिन ये क्लियर नहीं है। अगर उद्देश्य ये होगा तो कैसे पहुंचना है वो भी हम भगवान से पूछेंगे और उस रास्ते पे चलेंगे। अभी सब गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए दुख भुगतना पड़ रहा है। लोग कहते हैं हम कहाँ पाप कर रहे हैं, ये पाप तो कर रहे हैं, तभी तो दुख आ रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं ठीक है हम पाप नहीं करेंगे, ऐसा तो मुश्किल है। भक्त जो है कृष्ण का, वही सिर्फ पाप से मुक्त हो सकता। कोई कहता है मैं भक्ति नहीं करूंगा, एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा, अहिंसक बनूंगा, भक्ति नहीं करूंगा लेकिन अच्छा व्यक्ति बनूंगा। क्या फायदा? अगर भक्त नहीं है
कृष्ण के लिए सेवा नहीं कर रहा है तो अच्छा व्यक्ति बन के क्या फायदा? कोई फायदा है? एक उदाहरण लीजिए। एक लड़का है 24 साल का, वो जा रहा है पैदल वॉक करते हुए अपने पिता के साथ। 4-5 लोग गुंडों ने उसके पिता को पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया और उसके पिता को पीट रहे हैं। ये चुप रहेगा? नहीं नहीं, मैं तो अहिंसक हूँ, अहिंसा का पुजारी हूँ मैं, मुझे अच्छा आदमी बनना है, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो इसका पिता बोलेगा क्या फायदा हुआ तेरा अच्छा आदमी बनने का जब तू अपने बाप को नहीं बचा सका? वही भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्या फायदा तुम्हारा अच्छा होने का जब तुम मेरा कहना नहीं मान रहे हो? असली पिता तो कृष्ण है, कृष्ण का कहना नहीं मान रहे, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, तो क्या फायदा अच्छा व्यक्ति? फिर अच्छा हुआ कैसे वो? मैं अच्छा बेटा बनूंगा लेकिन अपने माँ बाप की सुनूंगा नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ? मैं अच्छा नागरिक बनूंगा लेकिन सरकार की सुनूंगा नहीं, फिर काहे का अच्छा हुआ? तो कोई अच्छा नहीं बन सकता जब तक भक्त न बने। भागवत में श्लोक है, यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासतः सुरो हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहि। जो भगवान की भक्ति करता है उसमें सारे देवताओं के गुण अपने आप आ जाते। जो भक्ति नहीं करता उसमें तो कहां से अच्छा गुण आएगा? बाहर से कितना भी पॉलिश देखे, अंदर पता है क्या है। तो कृष्ण का सेवा करना ही सबसे अच्छा बनना है। नहीं तो आप माता पिता का आप बोलते हो मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा लेकिन घर में चोर घुसा है, चोरी कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। नहीं नहीं, मैं तो अच्छा व्यक्ति बन रहा हूँ। उसको चोर को चोरी करने दो, मुझे उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उल्टा लाइट चालू करो, हाँ तिजोरी खोल दिए, भाई जो उठाना है उठा ले चल। तो फिर ऐसा अच्छा व्यक्ति बन के क्या फायदा? घर लुटा लिए तो। इसीलिए भगवान का भक्त बनना है। उसमें क्या होगा? भगवान का भक्त बनेंगे, भगवान जो कह रहे हैं वो करेंगे। गीता में भगवान ने कहा, भागवत में उपदेश है, हमारे आचार्यों से गुरु परंपरा से उपदेश मिलता है, वो करते रहेंगे, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, फिर सब कुछ मिल जाएगा। फिर सोचने की जरूरत है क्या कि हमको ये चाहिए वो चाहिए? डिमांड करने की जरूरत है? नहीं। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की बातों को सुनता है, माता पिता उसको सब उसका फैसिलिटी दे देते हैं, मांगना थोड़ी पड़ता है, उसको मिल जाता है। कोई अच्छा अगर कर रहा है, हाँ, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है जैसे उसको बोला गया है, उसको अपने फैसिलिटी मिलती है, सैलरी मिलती है, प्रमोशन मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, सब मिलेगा ड्यूटी करने से। तो इसीलिए हमको हमारे कर्म, हमारी ड्यूटी पे फोकस रहना चाहिए। फल जो मिलेगा वो आप उसको एक्सेप्ट करिए, उसमें संतुष्ट रहिए। हरे कृष्ण।